So today I will be starting with question number 11 of GATE Environmental Science and Engineering because we discussed in last part, we discussed till question number 10, which was on our agenda, right? So today we will be starting with question number 11. So question number 11 is basically a question which came from the life cycle analysis part, and it is directly from Gilbert. Direct question from there. So what question says, let's say see first that the following block diagram highlighted the typical phase of life cycle assessment of the product. So whenever you do the life cycle assessment, like from the production till its end of the life, right? So in the figure, P, Q and R represent various possible scope of analysis in the life cycle assessment. Which of the following statement is true? So it's a very simple question, not that much of tough sort of question. And similar question have been asked in NTNet JRF a few years ago. So if you see from here the stages, like the first stage which is there, the material extraction. So I will square them one by one. First we did the material extraction, right? Then followed by the production, then followed by its distribution, then followed by its use, and finally the end of the life of that product. So they have marketed at different ages, like this P is the production, then Q include material extraction. If you go by P, this covers only this, the production part. If you go by Q, Q covers only material extraction and production part. But if you go through R, then it covers the life cycle from material extraction till the end, where end of the life happens. So it is covering all the stages, right? It is covering all the stages. So the correct option for this would be the R, which is here. It is representing the cradle to grave analysis. So this is the correct answer, which you called as cradle to grave analysis. So there are different type of life cycle analysis which we have mentioned in our solution. So cradle to grave analysis is the correct answer for this, and which is one of the option A when we will be sharing the paper. So but we have different type of analysis like cradle to grave, where cradle to grave is the full life cycle assessment as mentioned here in our solution, right? Assessment from the response extraction, cradle. So the first stage is called cradle. To use phase, disposal phase, which is called grave. ठीक है, कि स्टार्टिंग से लास्ट तक का हम दे रहे हैं उसमें. फॉर एग्जांपल ट्रीज प्रोड्यूस पेपर which can be recycled into low energy production cellulose, right? And then fiberized paper, insulation, and then use as energy saving devices in sealing of the home for 40 years, and then at last they are disposed of, so possibly incinerated. So in this manner, from the starting till the end, everything is covered. And other type of analysis are like cradle to gate. What does it mean? So cradle to gate assessment में क्या होगा? The partial product life cycle from the resource extraction cradle to the factory gate, means the factory में वो enter करेगा, transport to the consumer, वहां तक का हम उसमें mention करते हैं. Then एक cradle to cradle भी होता है, closed loop production जिसको आप बोलते हैं. तो cradle to cradle में क्या होगा? Specific kind of cradle to grave assessment, where end of the life disposal step for the product is recycling process. Last में उसकी recycling होनी है, ठीक है. और फोर्थ टाइप का एक होता है आपका गेट टू गेट लाइफ साइकिल असेसमेंट. तो गेट टू गेट लाइफ साइकिल असेसमेंट की जब आप बात करते हैं, तो गेट टू गेट क्या है? पार्शियल लाइफ साइकिल असेसमेंट, लुकिंग एट ओनली वन वैल्यू एडेड प्रोसेस इन द एंटायर प्रोडक्शन चेन. सो गेट टू गेट मॉड्यूल में आल्सो लेटर बी लिंक्ड इन द अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन चेन फ्रॉम द कंप्लीट ग्रेडल टू गेट इवैल्यूएशन. तो ये चार तरह के आपके लाइफ साइकिल असेसमेंट हैं, इनको आप एक बार नोटिस कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है. और तो यहाँ पे आंसर आपका रहेगा जी क्रेडल टू ग्रेव एनालिसिस, क्योंकि सारी स्टेज को कवर कर रहा है ना, यहां से स्टार्ट करके और लास्ट तक जा रहा है, एंड ऑफ द लाइफ. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 11 इज क्लियर टू एवरीवन? क्विकली बताएंगे, एकदम क्विकली, जल्दी से. इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट. हाँ, क्यू जो है, देखो जो क्यू है आपका मटेरियल प्रोडक्शन है, एक्सट्रैक्शन है, उसके बाद प्रोडक्शन है. ये तो इनकम्प्लीट स्टेज हुआ ना, इसमें तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ. इसमें हाँ ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे फैक्ट्री गेट, तो ये क्रेडल टू गेट तक हुआ. क्यू जो है क्रेडल टू गेट तक हुआ, ठीक है.
और पी को स्टेज में डिफाइन नहीं करेंगे, पी तो सिंगल ही स्टेप के लिए दे रहा है, तो क्रेडल टू गेट तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री प्रोडक्शन तक गया है ना, ठीक है। तो जहां पे क्या है मतलब फैक्ट्री गेट तक जा रहा है, एक्सट्रैक्शन के बाद फैक्ट्री गेट तक जा रहा है। इज इट क्लियर टू बरखा गुप्ता? जल्दी से बताएंगे। चलो अब हम आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 काफी इजी इजी है, मतलब इट्स क्वाइट ओवरलैपिंग विद द एनटी एंड जेआरएफ आल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं फटाफट से। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इट्स आल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये डायरेक्टली स्टडी किट से आया है, बुकलेट नंबर 4 में मेंशन है, ठीक है। तो और ये अंकिता मैम ने आपको पढ़ाया भी हुआ है क्लास के अंदर। ठीक है, तो कहाँ से रिकनेक्ट करना है वो देख सकते थे। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन 1992 जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस सेवरल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर अडॉप्टेड बाय मेनी कंट्रीज। Which one of the following principle allow the government to take mitigation measure on the environmental issues having serious threats or irreversible damage even if there is scientific uncertainty about such issue? तो ये तो बिल्कुल लाइन टू लाइन ही लिखा हुआ है, जिसको आप कहते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, राइट। जिसको आप कहते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कि आपको प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन पे चलना है। ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो मिटिगेशन मेजर ले सकती है किसी भी इन्वायरमेंटल इशू पे जो ऐसा या इरिवर्सिबल डैमेज आपको कॉज कर सके। ठीक है, तो उस पे हम कोई भी गवर्नमेंट उस पे दे सकती है। एंड कोई भी अगर उसके अंदर साइंटिफिक अनसर्टिनिटी भी है तो भी उसके बाद जो है गवर्नमेंट को राइट है, ठीक है, वो मिटिगेशन मेजर उस पे कर सकती है, जो है ले सकती है। इसमें फिर और भी कुछ कुछ आपको दिए गए थे, जैसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का तो मैंने बता दिया आपको कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इसके अलावा प्रिकॉशनरी इसमें पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल होता है। वन इज पोल्यूटर पे प्रिंसिपल जो मेंशन है ऑप्शंस में, मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल में क्या है? पोल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या कहता है? दोज हु विल पोल्यूट दे विल पे फॉर दैट। ठीक है, कि जिसने पोल्यूशन फैलाया है वही उसके लिए पे करे। तो इसमें ये बाउंडेशन हो जाती है आपकी। फिर इसके बाद था एक ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई कंपनी है, कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है वो, और वो बॉटल में उसको पैक करके देती है कोल्ड ड्रिंक को, तो उसके बाद बॉटल को भी डिस्पोज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग दैट बॉटल, सो डिस्पोज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी जो है उस कंपनी की होगी। इसको आप बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उसमें जो मेन मेन हाईलाइटेड है, और ये आपका लॉ वाले सेक्शन से है जो अंकिता मैम ने आपका कवर किया है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताइए फटाफट से, क्विकली। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? क्लियर है, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका 13th क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर जो आपका आया हुआ है, बहुत ही सिंपल और प्लेन क्वेश्चन था। एंड इवन अ 12th क्लास स्टूडेंट कैन करेक्ट इट। मैं बताता हूँ ट्रिक कैसे। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोनेंट। आपको बायोडिग्रेडेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। अब देखो, आपको ये बात तो पता है कोई भी अगर प्लास्टिक है वो इजीली डिग्रेड नहीं करती। ठीक है, तो इसमें प्लास्टिक वाला एक ही ऑप्शन जो दिया हुआ है पीवीसी, तो उसका लीस्ट होना था। तो जो आपका पीवीसी दिया हुआ था उसका लीस्ट होना था, तो लीस्ट जो है वो पीवीसी आएगा इसमें। तो जिस ऑप्शन में पीवीसी लीस्ट है वो आप लेंगे। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन थे जिनमें पीवीसी लीस्ट था। लेकिन उसके बाद क्या है कि फूड वेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा बायोडिग्रेडेबल है, उसके अंदर फुल्ली ऑर्गेनिक है आपके। तो बायोडिग्रेडेबिलिटी जो है फूड वेस्ट की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद आपका न्यूज़पेपर है, जो कि आपका क्या कहते हैं पेपर जो है, आपको पता है सेलुलोजिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबिलिटी में इसके बाद न्यूज़पेपर का ऑर्डर आएगा, सबसे पहले फूड वेस्ट का आएगा। ठीक है, तो फूड वेस्ट सबसे ज्यादा है, देन न्यूज़पेपर, देन पीवीसी। तो यहाँ पे ऑर्डर जो हो जाएगा, फूड वेस्ट नंबर 1, नंबर 2 इज न्यूज़पेपर एंड नंबर 3 इज पीवीसी। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा था नहीं। तीनों बस आप ऑर्डर को कनेक्ट करिए कि भाई सबसे ज्यादा बायोडिग्रेडेबल क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर तो सारे कंपोनेंट ही जो फूड वेस्ट है वो सारे फुल्ली ऑर्गेनिक्स है, और वो डिग्रेड भी आसानी से होगा क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट भी काफी ज्यादा होता है उसके अंदर। देन फॉलोड बाय न्यूज़पेपर, और पीवीसी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो सबसे आखिरी में आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें?
ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी डायरेक्टली जो गिलबर्ट मास्टर से आपके है क्वेश्चन लास्ट चैप्टर से पिक किया गया है। लेकिन वही है कि सबको अंडरस्टैंडिंग उतनी होती है, तो जब रीड आउट आप अच्छे से करेंगे, क्लास में भी ये कवरेज हुई है, जब अंकिता मैडम ने इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट आपको पढ़ाया है उसमें हुआ है सारा। आगे आ जाइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है और एक ये बेसिक क्वेश्चन है, 11th-12th के कॉन्सेप्ट पे बेसिस है ये, जो आपका 12th सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देखिए ध्यान से, इसको बस पढ़ने के साथ ही आप इसको ठीक कर सकते थे। कहता है इन द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस व्हेन 10 kg मॉइस्चर फ्री सॉलिड सैंपल इज हीटेड इन अ फर्नेस, कि 10 kg का एक मॉइस्चर फ्री सॉलिड सैंपल है, उसको मैं फर्नेस में हीट कर रहा हूँ एट 950 डिग्री सी इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में उसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है, एनारोबिकली, है ना। तो इट्स मास इज रिड्यूस्ड बाय 6 kg, उसका मास जो है रिड्यूस होकर 6 kg हो जाता है। इफ द सेम 10 kg मॉइस्चर फ्री सॉलिड सैंपल इज हीटेड इन द फर्नेस एट द सेम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इस बार एयर की प्रेजेंस में है, its mass is reduced by 7 kg, the percentage of fixed carbon in the sample is। अब देखो गाइस, इसमें आपको ये देखना है, हम दो केस इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे मान लो मैंने दो केस इसमें कंस्ट्रक्ट कर लिए कि मैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस मैंने करी, पहले केस में क्या था, 10 kg का आपका मॉइस्चर फ्री सॉलिड सैंपल था, उसको हीट किया और वो कहाँ तक पहुंचा भाई, वो पहुंचा 6 kg तक। तो पहली बार में मैं कहां से कहां जा रहा हूं, पहली बार में मैं जा रहा हूं 10 kg से, जस्ट पहली बार में पहुंच गया 10 kg था मेरे पास और उससे मैं चला गया जी 6 kg पे, ठीक है। दूसरी बार में सेम काम हो रहा है, केस 2 में 10 kg मैंने लिया और इस बार में 7 kg पे, तो यहाँ से मैं पूछा 10 kg से 7 kg पे। तो इन दोनों को आप देख लीजिए, जो फिक्स कार्बन होगा वो तो फाइनली जो रिड्यूस होगा मास, उसमें फिक्स कार्बन ही बचेगा ना। तो ये कितना एक्सचेंज हुआ, इसमें लास्ट में आपसे पूछता है द परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन इन द सैंपल इज, कितना होगा जो इनका डिफरेंशियल अमाउंट होगा, ठीक है। तो इनिशियली कितना था 10, तो इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 7 kg दूसरे सैंपल में केस 2 में माइनस 6 kg डिवाइडेड बाय 10 kg इनटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 10%। तो 10% इसमें फिक्स कार्बन होगी गाइस, तो इस पे एक ऑप्शन आपको 10% की मिलेगी, तो 10% इज द फिक्स कार्बन। क्या ये क्लियर है सबको, क्योंकि फाइनली जो आपको फिक्स कार्बन मिलेगी वो मॉइस्चर को हीट करने के बाद जो लास्ट में कंटेंट आपका बचेगा वही आपकी फिक्स कार्बन होगी। तो पहली बार जो 7 kg था, उसके बाद 6 kg था, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1, तो आइडियली 1 kg जो है, तो 10% के आसपास का जो अमाउंट है वो आपको इस पे फिक्स कार्बन का मिलेगा। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताइए फटाफट, क्विकली, वी हैव टू डू मेनी मोर क्वेश्चंस, ठीक है। तो इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते थे, ये कुछ नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो उसमें फिक्स कार्बन रहेगा वो मॉइस्चर जाने के बाद जो मास बचेगा उनमें जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो स्टेज हमें डिटरमाइन करेगी कि कितना उसके अंदर फिक्स कार्बन है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप्स का ही क्वेश्चन है, बट स्टिल। अब देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहता है क्लोरीन इज मोस्ट इफेक्टिव एज अ वाटर डिसइंफेक्टेंट एट पीएच ऑफ हाउ मच, और इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। ए दिया हुआ है आपको 6, बी दिया हुआ है आपको जो दिया हुआ है जी 8, सी दिया हुआ है जी आपको 10 और डी दिया हुआ है आपको 12। पहले हम इसको ना रिएक्शन को समझ लेते हैं। देखो, जब भी आप क्लोरीन ऐड करते हो सैंपल में फॉर द पर्पस ऑफ डिसइंफेक्शन, तो क्लोरीन आपकी वाटर में ऐड होती है और HOCl और HCl आपका प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि पीएच करीबन करीबन मोर देन 5 के आसपास होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये HOCl जो है फर्दर आपका ब्रेक डाउन हो जाता है H+ और OCl माइनस में, हाइपोक्लोराइट है यहाँ पे। और अगर ये पीएच जो है आपकी मोर देन 7 हो जाए, इफ दिस पीएच इज मोर देन 7, तो HOCl रिवर्सिबली इस फॉर्म में टूटेगा, H+ और OCl माइनस, ठीक है। मोर देन 7 पे रिएक्शन होती है। लेकिन ये कह रहा है कि क्लोरीन चाहिए मुझे, तो क्लोरीन मोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट कब होगा, जब मेरी पीएच का रेंज जो 5 से 7 के बीच में हो। आप देखो, क्योंकि अगर पीएच 7 से ऊपर हो गया तो ये तो जो HOCl है ये ऐसे नहीं रहेगा इंटैक्ट, ये ब्रेक डाउन कर जाएगा H+ और OCl माइनस में। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि HOCl और OCl माइनस दोनों डिसइंफेक्टेंट होते हैं, लेकिन HOCl जो है वो 80 टाइम्स मोर इफेक्टिव होता है देन इन कंपैरिजन टू OCl माइनस। ये HOCl वाला क्वेश्चन कई बार एनटीए में भी आ चुका है। तो अगर मेरे को इसको HOCl की फॉर्म में ही रखना है तो पीएच मेरा 5 से ज्यादा बट 7 से कम होना चाहिए। जो मैंने यहाँ दिखाया है कि 5 से ज्यादा पे रिएक्शन होती है
और 7 से कम रहेगा तभी ये HOCl की फॉर्म में रहेगा। ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि हमें HOCl चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्लोरीन जो है मेरा HOCl की फॉर्म में रहे, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव वो डिसइंफेक्टेंट है। तो पीएच जो है हमारी वो 5 to 7 के बीच में होनी चाहिए। और इन सारे ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन गाइस आपको ऐसी दी हुई है जिसमें से 5 और 7 के बीच की वैल्यू है, विच इज 6। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा पीएच शुड बी अराउंड 6। क्या है, क्लियर है सबको? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है यहाँ पे। किसी को इसमें कोई डाउट आ रहा है? इस पे बस आपको ये ध्यान देना है कि मेरा जो क्लोरीन जो यूज हो रही है वो HOCl की फॉर्म पे रहे, तो उसमें जो पीएच है मेरी वो 5 से ऊपर होनी चाहिए और 7 से कम होनी चाहिए। अगर 7 से ऊपर पीएच हो जाएगी तो आप इस रिएक्शन को देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये HOCl जो है अगर 7 से ऊपर पीएच होती है तो HOCl जो है H प्लस और OCl माइनस में ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि OCl तो डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी है OCl की, लेकिन उसकी वीक है HOCl से। तो मैं नहीं चाहता कि वो OCl माइनस की फॉर्म में हो, क्योंकि मुझसे पूछा है क्वेश्चन में क्लोरीन मोस्ट इफेक्टिव कब होगा। मोस्ट इफेक्टिव वो इस फॉर्म में होता है, और ये फॉर्म कम रहती है जब मेरी पीएच मोर देन 5 हो एंड लेस देन 7 हो। तो एक ही ऑप्शन आएगा इसमें 6 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ फटाफट, क्विकली क्विकली बताओ भाई, क्विकली। Anyone having any doubt till here? All the people of this gate batch. Anyone having any doubt? चलो, ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं पर ये बहुत काम की है काफी, मतलब। और इजीली आप आराम से 60-70 मार्क्स निकाल सकते हो अगर आपके थोड़े से बेसिक ब्रशअप है। हमारी पूरी टीम ने स्पेशलाइजली जो पढ़ाया है उतना भी कवर करने से आपको बहुत अच्छा आउटकम आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं दोबारा से फिर अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन एंड आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। हाँ देखिए, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और लेट मी टेल यू, ये जो क्वेश्चन है ये जेई का क्वेश्चन है, 12th क्लास के टाइप का एक क्वेश्चन है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का इसमें कॉन्सेप्ट है। और ये क्वेश्चन ओल्डर टाइम में एनटीए नेट जेआरएफ में आ चुका है एक बार। इफ यू डोंट माइंड दैट, यू कैन चेक, असाइनमेंट में हमारे दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट, जस्ट अ मिनट। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 प्लस NO2 माइनस एंड NOR रिस्पेक्टिवली। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है गाइस, आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमने करी है। 11th-12th के कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो NH4 प्लस आप लेंगे, तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन बी X, तो X इंटू 4, हाइड्रोजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट बाई 1, 4 इंटू 1, टोटल चार्ज इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना था NH4 प्लस, +1 था। ठीक है, +1 था, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, +1 था। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू +1। तो x कितना आ गया, -3। तो x इज इक्वल टू -3 किसके केस में, NH4 प्लस के केस में। तो ये ध्यान रखिएगा, -3 इसके केस में ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, NH4 प्लस में -3 है, लिखते रहिएगा। अब दूसरे सब्सटेंस पे चलते हैं। सो NH4 प्लस में -3 हो गई मेरी। ठीक है, दूसरे केस में चलते हैं NO2 माइनस में। तो यहाँ पे भी करेंगे, x प्लस 2, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, इज इक्वल टू टोटल चार्ज -1। तो x कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी -3 आ गया आपका, सॉरी +3 आ गया। ठीक है, +3 आ गया, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा, ये +3 आ गया। ठीक है, ये +3 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे +3 आ गया आपका। ठीक है, तो +3 NO2 इसके केस में आ गया, यहाँ पे +3, यहाँ पे -3। थर्ड केस देखते हैं NO वाला, थर्ड केस देखते हैं जो NO वाला केस है हमारा। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं जो हमारा NO वाला केस है। ठीक है, उसमें क्या है जी, थर्ड केस में देखते हैं NO है, तो x -2 इज इक्वल टू 0। तो x कितना हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे +2 आ गया, तो +2 आ गया, है ना।
तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, -3 + 3 एंड +2 जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन आपका। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ये आ जाएगी, क्योंकि NH4+ में मेल निकल के आई थी -3, NO2- में आई थी +3 और इसमें +2। ये बिल्कुल 11th-12th बेस क्वेश्चन था ऑक्सीडेशन स्टेट का, इसमें कुछ भी बहुत टिपिकल नहीं था, इजीली आप इसमें 1 मार्क स्कोर कर सकते थे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला -3 + 3 एंड +2। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? एनीवन हैविंग एनी डाउट? आगे चले जाएं, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते रहिए भैया। क्लियर आ रहा है? चलो आगे चलते हैं फटाफट से गाइस। आगे चलते हैं। ये तो और इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी एक एनटीए नेट जेआरएफ में आ चुका है, तो काफी कॉमन और सिमिलैरिटीज है एग्जाम के अंदर, जो कि हमारे इसीलिए सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाते हैं इजीली। What is the pH of a water sample having H+ ion concentration 10 milligram per liter? The atomic weight of hydrogen is 1 gram per mole। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो गाइज, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो H+ आयन कंसेंट्रेशन है वो दी हुई है जी 10 mg पर लीटर, ये दे दी मैंने 10 mg पर लीटर, मतलब मेरा जो हाइड्रोजन आयन का जो वेट है वो 10 मिलीग्राम है। कितने में? 1 लीटर में। तो आपको तो ये पता है कि जो पीएच होती है वो होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन। तो H+ आयन कंसेंट्रेशन तो होती है, लेकिन यहाँ पे पहले आपको इसके मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट आपको कितना दिया हुआ गाइस यहाँ पे 10 मिलीग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट 1 ग्राम पर मोल। तो ये मिलीग्राम को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 10⁻²। इतने मोल्स आ गए आपके। बस जब आपके जो मोल्स आ गए पर लीटर, तो इसमें आप पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर पीएच के। तो यहाँ पे देखिए वही हमने किया है, इतने मोल्स निकल के आए हैं। पीएच आपकी क्या होती है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन, तो -log 10⁻²। तो इसका पीएच कितना आ जाएगा गाइस? 2 आ जाएगा। तो पीएच आ गया आपका 2। तो यहाँ पे पीएच आपका आ गया जी 2। बहुत इजी है, क्योंकि log m⁻n क्या होता है गाइस? n log m। ठीक है, तो वो बाहर आ जाएगा -2, और log 10 कितना होता है? 1। तो log 10 आपका 1 हो जाएगा, जो नीचे कैलकुलेशन में हमने किया। ये तो आई गेस सबको आता होगा, ये 11th-12th क्लास का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ज्यादा हाई क्लास का आपको ब्रेन नहीं अप्लाई करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आ गया pH 2। किसी को कोई डाउट है इसमें? जल्दी बताइए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, बिकॉज दीज सेशंस आर फॉर द डाउट पर्पज ओनली। दीज सेशंस आर फॉर द डाउट पर्पज ओनली। ठीक है, क्लियर हो गया जी सबको? चलो आगे चलते हैं। क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये तो और इजी क्वेश्चन है भाई, जिसने भी 11th-12th में थोड़ी सी बायो पढ़ी है, और ये तान्या मैडम और अनीश सर ने बड़े अच्छे से कवर किया हुआ है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में, जहाँ पे आपके हम डीएनए आरएनए की बात कर रहे थे, तो वहां पे बड़े अच्छे से कवर किया हुआ है दोनों ने। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इज प्रेजेंट इन डबल हेलिक्स डीएनए। तो इसको बड़े आपको प्यार से कह सकते हैं, आपसे पूछ रहा है कि बेस पेयर कौन सा करेक्ट होगा डबल हेलिक्स डीएनए में। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ए ऑप्शन जो कहता है वो कहता है जी थाइमिन टू साइटोसिन, थाइमिन टू साइटोसिन। और बी ऑप्शन कहता है आपको एडेनिन टू थाइमिन। सी ऑप्शन आपको कहता है जी साइटोसिन टू एडेनिसिन, एडेनिन। एंड डी ऑप्शन कहता है आपको यूरेसिल टू थाइमिन। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इसमें आपको पहले अंडरस्टैंडिंग बेस कॉन्सेप्ट वाइज चलना है, कि जो आपकी 2 तरह के आपके जो है बेसिस होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पायरिमिडीन। प्यूरिन में आपके एडेनिन, जिसको ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन जी। पायरिमिडीन में 3 होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, जिनको आप रिस्पेक्टिवली सी, यू और टी से डिनोट करते हैं। अब ये देखिए क्या है कि जो आपका डीएनए होता है उसमें एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विद थाइमिन, और दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लाइंस दिखाई हुई हैं। सिमिलरली जो एडेनिन है, ठीक है, वो थाइमिन के साथ आपका ये बाइंड कर गया है, और ग्वाइनोसिन जो है, जो सॉरी ग्वानिन है, वो साइटोसिन के साथ बाइंड करता है, लेकिन उसके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन डीएनए की जब आप बात करोगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की, तो उसमें ये पेयरिंग है, ए कंबाइंस विद टी एंड जी कंबाइंस विद सी, और यहाँ पे डीएनए हेलिक्स के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें तो क्लियर कट मुझे आंसर मिल गया दैट ए कंबाइन विद टी।
तो मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, लेकिन फिर भी हम इसको और समझते हैं थोड़ा सा। ए कंबाइन विद टी, ये बी आंसर हो गया मेरा इसमें। लेकिन आरएनए में थोड़ा सा केस डिफरेंट है, जो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड है आरएनए, उसमें थोड़ा सा जो है केस वो डिफरेंट है। वो क्या केस डिफरेंट है? जब आप आरएनए की बात करते हैं गाइस, तो आरएनए में सिंपल है कि आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, ए कंबाइंस विद यू, मतलब थायमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में, और ये आ सकता है दोबारा गेट में भी। तो थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, क्योंकि डीएनए में थायमिन था एडेनिन के साथ, लेकिन आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। और ग्वेनिन विल कंबाइन विद साइटोसिन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये लिखा भी हुआ है ना, यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थायमिन। तो यहाँ पे आपका ये बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया हमारा, ए कंबाइंस विद टी। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 11th-12th की बायोलॉजी पे बेस्ड है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक आपका आ गया कि भाई ए कंबाइंस विद टी, एडेनिन कंबाइंस विद थायमिन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच इज द चॉइस बी। चॉइस बी आपको दी हुई है उसके अंदर। जस्ट अ मिनट गाइस, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को टिल क्वेश्चन नंबर 18? एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो जी आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और डायरेक्ट स्टडी मटेरियल से है ये। हमारे जो आपको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज वाला चैप्टर है एयर पोल्यूशन का, मैंने वो कवर किया है, तो मुझे पता है ये बात कि वहां ये मेंशन है। तो बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बोथ द ग्रीन हाउस एंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, इसको आराम से आप ठीक कर सकते थे। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे जी। पहला ऑप्शन था आपका CFC11, और ये मोर देन वन वाले हैं, ठीक है, मोर देन वन चॉइस वाले हैं। बी में आपको दिया हुआ था CO2, सी में आपको दिया हुआ था जी HCFC 22, और डी में आपको दिया हुआ था N2O। अब लेकिन आप क्वेश्चन पे जाओ, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बोथ, दोनों होने चाहिए, ग्रीन हाउस गैस भी होनी चाहिए और वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि जो CFC है वो तो मेरे ग्रीन हाउस गैस में आते ही हैं और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में आते ही हैं। CO2 जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस है पर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, तो CO2 तो नॉकआउट हो गया क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता। ऐसे ही जो N2 है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस तो है पर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, तो ये भी नॉकआउट हो गया। लेकिन जो CFC11 है वो ग्रीन हाउस गैस भी है और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है। ऐसे ही जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 22 है वो भी आपका ग्रीन हाउस गैस भी है और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा A and C। सो A and C आर द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 19। अब थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो हमने क्यों A and C ही लिया। जो CFC11 आपको सबको पता है, इसका जो फार्मूला आप लिखेंगे CFCl3 होता है, इसको फ्रियॉन या हम R11 भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। और CFC का जो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है वो 1 होता है गाइस। ये क्वेश्चन कुछ टाइम पहले NTA नेट JRF में भी आया है, आज से 2 साल पहले, कि जो CFC11 है उसका ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जो होता है 1 होता है, और इसी के रिस्पेक्ट में अदर सब्सटेंसेस का हम ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जो है डिसाइड करते हैं कि कितना होगा। फिर दूसरी अगर स्पीशीज हम ले HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 22, जिसको हम R12 भी कहते हैं, इसका फार्मूला आपको आता ही है नेमिंग के साथ, जो हमने सिखाया हुआ है CHClF2 होगा, ठीक है। और ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल कितना होता है इसका 0.04, ठीक है। और हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है HCFC 22 का, यूज्ड एज ए प्रोपेलेंट एंड रेफ्रिजरेंट। तो ये प्रॉपर्टीज ये मेंशन करती है कि यहाँ पे जो 2 ऑप्शन है A और C वो करेक्शन में जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, दे आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आल्सो एज वेल एज ग्रीन हाउस गैसेस। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से बता दीजिए फटाफट भाई, जल्दी से जल्दी, क्विकली। अगर किसी को कोई भी डाउट है 1% का भी, बिल्कुल पूछिए आप, बिकॉज दीज क्लासेस हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर दैट पर्पस ओनली। जल्दी बताइए फटाफट से, किसी को कोई डाउट है इसमें गाइस? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। दिस इज ऑल्सो 12th क्लास बेस्ड मैथमेटिक प्रॉब्लम, जो शायद आपने कहीं ना कहीं जब मैथ्स पढ़ते थे, और ये आपको प्रतीक सर ने काफी अच्छे से पढ़ाया है और डॉक्टर सुधांशु ने भी काफी अच्छे से पढ़ाया है। जो अगर आपने उनके कोर्स और क्लासेस देखे हो, दोनों ही लोगों ने काफी उन्होंने पढ़ाया हुआ है, डॉक्टर सुधांशु ने भी पढ़ाया है। तो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मैं दे रहा हूँ, जिसमें कि dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर y। कहता है
has y as the dependent variable and x is the independent variable। तो y आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है आपका जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको दिख भी रहा है इक्वेशन से दैट y डिपेंड्स अपॉन x। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज प्रेडिक्टेबल फॉर द इक्वेशन। तो पहली बात तो आपको यहाँ ये देखनी है कि जो मेरी इक्वेशन है, जब भी इसमें आपसे इस पे पूछा हुआ है कि जी ऑर्डर क्या है इक्वेशन का आपका और कैसी उसकी लिनियरिटी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो ऑर्डर होता है ना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका dy बाय dx है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर वन हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर तो वन हो गया, क्लियरली मेरे को समझ में आ गया, ऑर्डर वन है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इज लीनियर व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ ऑल द डेरिवेटिव्स अकर लीनियर पावर विद वन, ठीक है। तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसमें आप देख रहे हैं इसकी पावर वन है, y की पावर इक्वेशन में आप देख सकते हैं वन है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना y की पावर वन है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन नेचर। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नेचर में कैसी है भाई, लीनियर है। और ऑर्डर भी क्या है उसका, ऑर्डर भी मेरा क्या है, वन है। ऑर्डर भी जो है क्या है मेरा, ऑर्डर भी मेरा वन हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये भी आपका बस टू की मैथमेटिक्स से है, कोई इसमें इतनी इशू है नहीं अगर देखा जाए तो एक लिहाज से। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही सिंपलिस्टिक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें पता चल गई कि भाई इसका ऑर्डर जो है वो वन है। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर हो जाएगा जी, ऑर्डर तो आपका वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हो गई, सॉरी रिएक्शन नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर हो गई और कैसा है नेचर में, ये लीनियर। लीनियर तो दो प्रॉपर्टी आपके आ जाएंगी, ये फर्स्ट ऑर्डर है और लीनियर है। तो इसमें आपके ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए इज लीनियर, बी इज आपका नॉन लीनियर, सी इज आपका फर्स्ट ऑर्डर, डी इज आपका सेकंड ऑर्डर। तो एक तो ये लीनियर है और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। तो ए और सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ए और सी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इसमें दो करेक्ट होंगे, ए एंड सी। ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। ए एंड सी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये लीनियर भी है और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लीनियर भी है और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नहीं नहीं, सेकंड ऑर्डर कैसे है, अरे एक्स की हाईएस्ट पावर नहीं होती भैया, वाई की होगी। क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल की लिखी हुई है ना, जो हाईएस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल की लिखी हुई है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव अकर लीनियरली विद पावर वन। यहाँ पे वन दिया है ना, देखो वाई का पावर यहाँ क्या है, वन है। बरखा गुप्ता को क्लियर है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी देखते हैं डियर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। तो इसमें ए और सी हो गया, लीनियर है और डिपेंडेंट है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। 20th क्वेश्चन आपका हो गया है। अब देखिए आगे चल रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है 21 में और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये इस तरह की इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशंस आप एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ते थे, पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि जी कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। जब भी आपसे पूछे कि रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, नॉन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसमें वैल्यू डाल के देखिए इक्वेशन के अंदर, और जहां पे वैल्यू जीरो आ जाए वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम ट्राई करते हैं पहले केस में, हम इसमें वन पुट करके देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, वन क्यूब, ठीक है जी, वन क्यूब माइनस 10 इंटू वन माइनस 10 इंटू वन स्क्वायर प्लस 31 इंटू एक्स माइनस 30। तो ये कितना आया, 1 माइनस 10 प्लस 31 माइनस 30। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32 माइनस 40। तो ये -8 बच रहा है, तो ये तो रूट हो नहीं सकता
क्योंकि 0 आना चाहिए था टू बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन और हैव टू बी द रूट ऑफ दिस। तो ए तो ऑप्शन में से चला गया, ए ऑप्शन में से चला गया, ए कुड नॉट बी द रूट। और जब अब बात आ रही है दूसरा बी, जो 2 वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आप 2 डाल के देखिए वैल्यू, 2 क्यूब माइनस 10 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 31 इंटू 2 माइनस 30। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 40 प्लस 62 माइनस 30। तो इसको अगर मैं देखूंगा तो ये कितना आ गया 70 प्लस और माइनस 70, यहाँ पे 0 आ गया। तो एक तो इसका रूट हो जाएगा b विच इज 2, तो b इसका रूट हो गया, एक रूट हो गया, b इसका रूट हो गया। फिर ऐसे 3 डाल के देखेंगे आप, फिर आप 3 डाल के देखेंगे, 3 जब डाल रहे हैं तो 3 क्यूब माइनस 10 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 31 इंटू 3 माइनस 30। तो इसको आप करेंगे 27 माइनस 90 प्लस 93 माइनस 30। तो इसको जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा जी 120 प्लस माइनस 120, ये भी 0 आ गया, मतलब ये भी मेरा रूट है, तो बी और सी रूट है। जब आप 4 डाल के देखेंगे तो ये नहीं आएगा, तो मेरे पास इस पे 2 रूट आ गए, दैट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो ये इजीली आप सॉल्व कर सकते थे और इमेजिन एक नंबर फिर से आपके पॉकेट में चला जाता है इजीली, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। एज सच देखा जाए तो ये बहुत कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल मतलब नॉर्मल लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आराम से किया जा सकता था और यहाँ पे आप देखेंगे कि आंसर मेरा हो गया बी एंड सी इजीली। जब भी आपको ऐसे आए कि रूट चेक करो तो इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करानी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी एंड सी, दैट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द रूट्स। तो बी और सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताएं भैया, फटाफट रिस्पॉन्ड करें, हम आगे चलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हो गया, जल्दी से। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी बताओ भाई, प्लीज रिस्पॉन्ड फास्टर गाइस, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू डू। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अभी, जल्दी से। क्लियर है सबको? चलो अब हम आगे चल रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चल रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चल रहे हैं। देखो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसके ऑप्शंस आपको बता देता हूँ और फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे। ये तो बिल्कुल डिट्टो हमारी बुकलेट से आया हुआ है, विंड रोज जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, विंड में सॉरी एयर में के बाद वहां पे विंड रोज वाला क्वेश्चन, ये मुझे पता है, कल भी मैंने शायद ये क्लास में पढ़ाया था इवनिंग बैच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। कहता है अ विंड रोज इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल कंडीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इनटू द रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो ऑप्शन इसमें क्या क्या दे रहा था, एक ऑप्शन था इसमें ए आपका जिसमें था मिक्सिंग हाइट, मिक्सिंग हाइट। नंबर 2 बी ऑप्शन था आपका एक इसमें, उसमें कह रहा था विंड इसमें परसेंटेज ऑफ टाइम, या आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जो विंड रोज होती है आपको, वो आपको यही तो बताती है कि कितना विंड स्पीड है, इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट विंड स्पीड। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, द विंड रोज इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज विंड फील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मींस इट इंक्लूड्स विंड वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड विंड फील्ड वेक्टर, मतलब डायरेक्शन क्या है, सो रिप्रेजेंट विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी और द अकरेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया कि विंड स्पीड भी रहेगी, विंड डायरेक्शन भी रहेगी, वो फ्रीक्वेंसी रहेगी। मिक्सिंग हाइट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, मिक्सिंग हाइट हैव नथिंग टू डू हियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, तो इसमें बी सी और डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे जो ऑप्शन। मिक्सिंग हाइट का इसमें कोई रूल नहीं है। हाँ, इसमें ये तीनों चीज जरूर काउंट होगी आपकी, कि इसके अंदर आपकी विंड डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी और विंड स्पीड या विंड वेलोसिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ फटाफट से, क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाएगा जो तीनों ऑप्शन है इसके। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑल्सो डन। तो आप देख रहे होंगे पेपर में कुछ इतना टिपिकल है नहीं जो आप सोचे कि भाई बहुत ज्यादा ही टफ है मैटर, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, वैसा कुछ है नहीं, तो ध्यान रखिए आप। अब देखिए आगे आ जाइए, इस पे ये भी
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23। ये क्वेश्चन भी आपको श्रुति मैम ने क्लास में कराया हुआ है, जो ये क्वेश्चन आपका आया एग्जाम के अंदर कि जी अ फ्लॉकुलेशन टैंक इज यूज्ड फॉर अ वाटर ट्रीटमेंट हैज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट g 800 per second. The volume of the tank is 40 cubic meter. The dynamic viscosity of the water is 9 into 10 to the power 4 Newton second per meter square. The theoretical power required to maintain the given velocity gradient is. तो theoretical power आपको कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला होता है गाइस, इसका theoretical power is equal to mu वॉल्यूम इंटू जी स्क्वायर। वहां पे जो आपका म्यू है, म्यू क्या होता है भाई, म्यू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ये रही वैल्यू। वॉल्यूम आपको गिवन है 40 मीटर क्यूब और जी आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ग्रेडियंट 800। बस सिर्फ आप फार्मूले में डालेंगे इसको। जैसे ही आप इसको फार्मूले में डालते हैं गाइस, ठीक है, वैल्यूज मैंने डाल दी विद यूनिट्स, तो आंसर आ जाएगा आपका 23.04 किलोवाट या अप्रोक्सीमेटली 23 किलोवाट इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है और ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क है, लेकिन नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये वाले जो क्वेश्चन है 23, 24, 25 इनको आप अच्छे से ले सकते हैं इजीली, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो कोई है नहीं, इजी क्वेश्चन है, कोई इतनी इसमें टफनेस आपको मिलेगी नहीं। तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं ये क्वेश्चन को करने का, क्योंकि छोड़ने में इसमें कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। तो जहां नेगेटिव नहीं है उस क्वेश्चन को तो आप इजीली कर ही सकते हैं, ठीक है, जहां नेगेटिव नहीं है उसको आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 23 किलोवाट। इज इट क्लियर? बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, P इज इक्वल टू म्यू वी जी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? देखो अब आप आगे आ जाइए, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये भी एनटीए नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन आ चुका है पुराने टाइम में ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, यहाँ पे सब्जेक्टिव पैटर्न में है, तो कोई इसमें इशू नहीं है, बट कॉन्सेप्ट सेम ही है। कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है इसके अंदर, बहुत सिंपल है ये और एक लाइन के फार्मूले से हो जाएगा। इन ए सैंपल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोवेल्स हैज स्टार्टेड विद एन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 5 into 10 to the power 4 cells per eleven, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड द सेल कंसंट्रेशन वाज फाउंड टू बी दिस मच सेल्स पर ml ऑफ द ईयर, assuming the binary fission of cell and know that the number of generation of cell growth occurred in this time period. तो गाइज मैं जब इसमें इकोलॉजी में पढ़ाता हूँ आपको या माइक्रोबियल इकोलॉजी में, तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और एक ऐसा क्वेश्चन दिया भी हुआ है आपके असाइनमेंट में। तो उसमें क्या है कि जब भी आपका बाइनरी फिजन होता है तो आपको पता है कि जो सिंगल सेल होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2, फिर फर्दर 2, फिर फर्दर 2। तो यहाँ से एक फार्मूला डिराइव हो जाता है दैट nt व्हिच इज द फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू n नॉट इनटू 2 रेज़ टू द पावर n। तो n वहां पे क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन। और नंबर ऑफ जनरेशन को जो कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बताया हुआ है वो क्या होता है, टोटल टाइम डिवाइड बाय टाइम पीरियड फॉर वन डिवीजन। तो यहाँ पे तो मुझसे खाली जनरेशन ही पूछी है, तो मुझे कोई ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, टोटल टाइम की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और मतलब लाइफ टाइम जो आपका डिवीजन के लिए चाहिए होता है वो उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिंपल सा यहाँ फंडा लगाएंगे आप कि भाई nt इज इक्वल टू n नॉट टू टू द पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ जनरेशन, और nt क्या है, nt मेरा फाइनल कंसंट्रेशन है, कितनी, 1280 इंटू 10 की पावर 4 सेल्स या 1280 इंटू 10 टू पावर 4 सेल्स, और इनिशियल कितनी है 5 दिस मच। तो इन दोनों को आप रख लेंगे ऐसे करके, और जब आप इसको करेंगे तो आएगा 256। सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है एनटीए नेट जेआरएफ में, 2 रेज़ टू द पावर n। तो जब आप इन दोनों को करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो n कितना आ गया 8, मतलब मुझे 8 जनरेशन चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे सेल ग्रोथ के लिए 8 जनरेशन चाहिए। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ऐसा क्वेश्चन एक गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन में भी आया हुआ है। तो बेसिक आइडिया जो है वो सेम ही है, इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द कॉन्सेप्ट्स, नॉट अराउंड लाइक एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे भी एक नंबर आप आराम से ले सकते थे। किसी को कोई डाउट है तो आपको सिंपल सिर्फ इतना ही तो फार्मूला लगाना था, nt जो फाइनल नंबर ऑफ सेल्स है इज इक्वल टू n नॉट टू टू द पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ जनरेशन। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? बहुत ही सिंपल है, कूल ब्रेन से अगर आप करते हैं तो स्कोरिंग 60 प्लस इज नॉट अ टफ थिंग फॉर दिस, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है 60 प्लस इसमें लाना, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 25 पे हम आ जाते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आई गेस रिसेंटली अली सर ने ये आपको पढ़ाया भी होगा, करवाया भी होगा। ठीक है, 25 में देखिए, अ वाटर जेट डिस्चार्जिंग फ्रॉम अ 4 सेंटीमीटर डायमीटर orifice has a diameter of 3.5 सेंटीमीटर at its vena contracta। ठीक है, तो इतना उसका डायमीटर है वेना कॉन्ट्रैक्टा पे। द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट स्ट्रीम टू द वेना कॉन्ट्रैक्टा। देखो हिंट भी दे रहा है आपको कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, रेशियो किसका होता है, एक्चुअल वेलोसिटी का to that of theoretical velocity of the jet at vena contracta। if the coefficient of velocity की वैल्यू आपको दे रहा है 0.98, आपसे पूछ रहा है coefficient of discharge for the orifice will be। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे डिफाइन करता हुआ चल रहा है जिसने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है जी वो होता है एक्चुअल डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑरिफिस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो सीडी होता है वो एक्चुअल डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑरिफिस होता है। ठीक है, और ये आपको पता है कि जो एक्चुअल डिस्चार्ज है ये बेसिकली क्या रहा होगा, ये एक तरह का फ्लो रहा होगा। तो फ्लो क्या होता था जी, एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्चुअल वेलोसिटी इनटू एक्चुअल एरिया डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी इनटू थ्योरेटिकल एरिया। क्या बताओ, इतना समझ में आया सबको? जो फार्मूला मैंने बताया कि जो मैंने लिखा है कि एक्चुअल डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑरिफिस, तो डिस्चार्ज किस फॉर्म में हो रहा होगा गाइस, फ्लो की फॉर्म में। फ्लो क्या होता है, क्यू, एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्चुअल वेलोसिटी इनटू एक्चुअल एरिया डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी इनटू थ्योरेटिकल एरिया। यहां तक सबको क्लियर है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वो और क्या कहता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है वो एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी है। तो एक्चुअल वेलोसिटी और थ्योरेटिकल वेलोसिटी का रेशियो तो ये दिया हुआ है, इसको हम सीवी पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो पुट कर दिया, सी डी इज इक्वल टू सी वी इंटू एक्चुअल एरिया बाय थ्योरेटिकल एरिया। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को इस स्टेप तक? जल्दी बताइए फटाफट। यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी बताओ भाई, साइलेंट नहीं रहेंगे, जल्दी से बोलेंगे। अरे जल्दी बोलो भाई। चलो आगे आ जाओ। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना था इसमें, आपको दिया हुआ था कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इतना है, तो सीवी की वैल्यू दे दी आपको 0.98, मतलब इसकी वैल्यू हमें पता है। तो एक्चुअल एरिया क्या होगा, अब क्योंकि ये स्फेरिकल ऑरिफिस है, ठीक है, सर्कुलर है डायमीटर इसका, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर लिखो या पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिखो। तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिख दिया एक्चुअल, पाई डी स्क्वायर बाय 4 थ्योरेटिकल। तो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, डायमीटर एक्चुअल बाय डायमीटर का थ्योरेटिकल का स्क्वायर। तो ये फाइनली नटशेल आपका फार्मूला निकल के आया, सी डी इज इक्वल टू सी वी, डायमीटर एक्चुअल बाय डायमीटर थ्योरेटिकल का स्क्वायर। एक्चुअल डायमीटर कितनी दी हुई है, 3.5। थ्योरेटिकल डायमीटर कितनी दी हुई है, और इफ इसकी 4। दोनों को पुट करेंगे और सीवी की वैल्यू आपको दी हुई है कि जी 0.98 है, 0.98 है सीवी की वैल्यू। तो सीवी की वैल्यू आप डाल देंगे इसमें 0.98 यहाँ पे, तो सीडी निकल के आ जाएगा। जो आपका सीडी है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वो निकल के आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.75। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो आपका आया ऑरिफिस पे वो आ गया 0.75। क्या ये क्लियर है सबको? जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइएगा, इसके क्लियर है सबको? ये भी 1 मार्क का इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें टफनेस मुझे नहीं महसूस हुई। इसको भी मैं टफ क्वेश्चंस में नहीं डालूंगा, इसमें आपको इतना भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आगे आ जाइए अब अगले क्वेश्चन पे। ये हमने 25 कर लिया है, अब आ जाइए 26 पे। ये तो और इजी भैया, इससे इजी तो क्वेश्चन ही होना मुश्किल है। 12th क्लास में आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ते थे, वहीं से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कि आपके पास, और ये प्रतीक सर ने आपको पढ़ाया भी है बड़े अच्छे से स्टार्टिंग में, और सुधांशु सर ने भी पढ़ाया है, ये जो क्लास कर रहे थे उनको पता है, रेगुलर थे। तो 2 by 2 मैट्रिक्स पी एंड क्यू सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। एक मैट्रिक्स दे दिया, पी प्लस क्यू उसका वैल्यू दे दिया 3 1 2 12, और p माइनस क्यू दे दिया -1 -7 8 2। कहता है मैट्रिक्स क्यू फाइंड आउट करो। देखो गाइस, हमें क्यू निकालना है, तो क्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये p कैंसिल आउट हो जाए। तो मान लो कि ये मेरी इक्वेशन a है, p प्लस क्यू 3 1 2 12, और p माइनस क्यू दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन b फ्रॉम a, या कर दो a माइनस बी। जैसे ही आप a माइनस बी करोगे तो ये लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस p। तो इसमें से माइनस p तो कैंसिल ही हो गया, और इसको करोगे तो 3 -1 1 -7। तो ये जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 2q इज इक्वल टू 4 8 -6 10। उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ गया 2 4 -3 5। ये मैट्रिक्स आपकी निकल के आ जाएगी, और इसमें एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है आपका, तो करेक्ट आंसर हो गया 2 4 -3 5।
इज इट क्लियर? ये पीडीएफ आपको सबको अवेलेबल होगी, एक्सेसिबल होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर है सबको? ये कर लेंगे? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, जल्दी बताइए कोई डाउट हो तो इसमें। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 26 तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 26 तक क्लियर है? मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा गाइस, डोंट वरी। डिटेल सॉल्यूशन आपको सारे क्वेश्चंस का कराया जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सारे आते हैं उतने। इट्स ऑल अबाउट जस्ट अप्लाइंग द थिंग्स ऑन देम। अब देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उस पे चलते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी है, और इसको भी मैं +1 +2 के लेवल का क्वेश्चन में रखूंगा कि आपकी एक डाई है, बायस डाई, जैसे होती है ना, आप लूडो खेलते हैं, ठीक है, उस पे 1 to 6 लिखा हुआ है फेसेस पे। ऑन रोलिंग द डाई विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर k appearing proportional to k square, what is the probability of the even number will appearing on the rolling of the die? तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको ज्यादा मतलब बहुत इंटेंसिव एफर्ट देना नहीं था, लेकिन फिर भी इसको पहले समझ लीजिए आप। देखिए कहता है कि एक बायस डाई है और 6 फेसेस हैं उस पे, और नंबर उस पे k 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और बायस डाई के 6 फेस पे नंबर 1 से 6 तक है। ऑन रोलिंग द डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर k अपीयरिंग ऑन प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर। तो इसमें ये ध्यान देना है कि जो प्रोबेबिलिटी k है किसी नंबर के अपीयर होने की, वो k स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो मान लो अगर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कहूंगा तो 1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, 2 की 2 स्क्वायर, 3 की 3 स्क्वायर, 4 की 4 स्क्वायर, 5 की 5 स्क्वायर, 6 की 6 स्क्वायर। तो ये प्रोबेबिलिटी ऐसे प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी k इज इक्वल टू 1 है वो कितनी हो जाएगी 1, और 2 के लिए कितनी हो जाएगी 4, 3 के लिए 6, 4 के लिए 16, 5 के लिए 25, 6 के लिए 36। तो ऐसे करके आपकी सारी वैल्यूज ये आ जाएंगी। बस यही चीज इसमें आपको अंडरस्टूड करनी थी। उसका सेकंड पार्ट तो बड़ा इजी है, कहता है कि इवन नंबर विल अपीयर। तो इवन नंबर गाइस कौन से हैं इसमें से, 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 ये मेरे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस है, ये मेरे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस है जो इवन नंबर है 2, 4 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन नंबर क्या आ जाएगी, probability at k is equal to 2 plus 4 plus 6 divided by total probability, total number of cases। तो इसको कुछ नहीं करना था आपने, बस इसको ऐसे ही आराम से करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या है 2 स्क्वायर, 4 क्या है 4 स्क्वायर, 6 क्या है 6 स्क्वायर, और नीचे 1 का 1 स्क्वायर, 2 का 2 स्क्वायर, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5 और 6 का 6। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 56/91 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है एज पर द पेपर विच इज गिवन टू अस। तो ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा, 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो 56/91। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ट्विस्ट भी कर सकता था, मान लो कह देता कि ऑड की बताओ, तो आप न्यूमरेटर में क्या रखते 135। अगर आपसे पूछता ऑड की बताओ तो 135, ठीक है। या फिर पर्टिकुलर नंबर की पूछ सकता है कि अपीयरेंस ऑफ 1 और अपीयरेंस ऑफ 3 ऐसे करके। तो सिर्फ वही केस लेंगे जो फेवरेबल नंबर ऑफ केस होगा। यहाँ पे पूछा है इवन नंबर की, तो इवन नंबर में तीनों काउंट होते हैं 2, 4 और 6। तो आंसर आ गया 56/91। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताइएगा इस फटाफट, अगर कोई डाउट आ रहा है अंडरस्टैंडिंग में तो भी बताइए, और नहीं तो क्लियर तो क्लियर। जल्दी बताइए फटाफट। क्लियर है भाई, सबको क्लियर है? क्योंकि डिस्कशन से क्या है ना, आपको एक क्लियर ओपिनियन मिल जाएगा कि पेपर में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा है नहीं, इट्स नॉट दैट मच ऑफ टफ, ठीक है। 27th क्वेश्चन आपका हो गया। आगे आ जाइए 28 पे। ये तो भैया डायरेक्ट जो आपको पढ़ाया गया उसी से है, और ये एनटीए में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का ड्रैग फोर्स हम पढ़ते ही है स्टॉक स्ट्रेच फोर्स में, तो इसमें तो मैं ऐसे ही मैच कर लूंगा, मुझे कुछ भी नहीं है आपको ज्यादा इसमें मशक्कत लगानी। सबसे आसान इसमें जो हिंट था वो था फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का, ठीक है। जो फिक्स साहब थे उनका जो लॉ था डिफ्यूजन का, तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन है उसको आप फिक्स से मिला लीजिए। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है ना, कि अंडर रूट ऑफ डायमीटर के प्रोपोर्शनल होती है ना जो आपकी डिफ्यूजन रेट होती है। तो उसके बाद दूसरा क्या है आपका ड्रैग फोर्स, तो ड्रैग फोर्स आप स्टोक फोर्स से मिलाएंगे। और तीसरा एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, जो किसने दिया, पॉइजली ने। तो ये तो आपका मिल गया P/2, ठीक है। ये 1 मार्क में बहुत इजी गेनर क्वेश्चन है, जिसको आप मतलब समझ लीजिए। सॉरी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, आई फॉरगेट। तो 2 मार्क्स इतने इजी मतलब आपको मिल रहे हैं 2 मार्क्स करके, तो सोचो कितना इजी है ये। तो डिफ्यूजन आ गया आपका फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और ड्रैग फोर्स स्टोक्स फोर्स, और ये पैस्कुली। तो आपका क्या हो गया P/2,
Q is 3 एंड R is 1। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका। इसमें कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल प्लेन क्वेश्चन था। किसी को कोई डाउट है इसमें जल्दी बताए। तो आंसर हो गया आपका P2, Q3 और R1। क्लियर है? ये तो बहुत हिंटेड क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इमेजिन करो इतना इजी क्वेश्चन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पे आप। ये उससे भी इजी है भैया, ये भी मल्टीपल टाइम्स जो है आपका नेट जीआरएफ एग्जाम में आ चुका है, तो इसका कोई वही नहीं है। ठीक है, कहता है दोनों को मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स कन्वेंशन प्रोटोकॉल फ्रॉम कॉलम 1 मैच कॉलम 2। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सबसे सिंपल हिंट आपको दिया हुआ है, रामसर कन्वेंशन फॉर द वेटलैंड। ये कितनी बार क्वेश्चन आया है एनटीए नेट जीआरएफ में, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो रामसर कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। और फिर आपको ये भी पता है कि जो भाई क्योटो प्रोटोकॉल है, दैट इज फॉर द अबेटमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और जो मॉन्ट्रियल है वो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, तो सीधा मिला देंगे इसमें। रामसर कन्वेंशन आपने मिला दिया। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ से रिलेटेड है? ओजोन डिप्लीशन से। फिर क्या बच गया? बेसल कन्वेंशन आपकी, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। सब अंकिता मैम ने आपको पढ़ाया हुआ है गाइस लॉ में। क्योटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेट चेंज। तो बस फिर कुछ भी नहीं है। रामसर कन्वेंशन कहाँ गया? P goes to 4, which is conservation of wetland, ये तो पता ही है। क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज पे चला गया, which is 3, Q goes to 3। बेसल कन्वेंशन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, ये भी कॉपी का है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन पे चला गया, तो आंसर आपका हो गया P4 Q3 R2 S1। इसमें कुछ था ही नहीं है, तो क्वेश्चन ऐसे ही है, फ्री क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए। फ्री का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, 2 मार्क्स ये फ्री के हैं। इज इट क्लियर गाइस? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? जल्दी बताइए फटाफट। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो भैया। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बिल्कुल बताएं कृपया, ये रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बता दे। क्लियर है सबको? चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है भैया, इसमें कुछ नहीं करना था आपने। इसमें भी बिल्कुल पढ़ के कर सकते थे आप। कहता है एन आइडियल पल्स फ्लो रिएक्टर, जो आपका ये रहता है पल्स फ्लो रिएक्टर, पीएफआर जिसको आप बोलते हो। ठीक है, पल्स फ्लो रिएक्टर जो रहता है आपका, ठीक है, सॉरी प्लग फ्लो रिएक्टर, और एन आइडियल सीएफएसटीआर। ठीक है, सीएफएस, इनके मीनिंग भी देखो दिए हुए हैं, आपको हिंट भी दिया हुआ है साथ में। पीएफआर इज प्लग फ्लो रिएक्टर एंड सीएफएसटीआर इज कंटिन्यूअस फ्लो स्टर्ड टैंक रिएक्टर। ठीक है, इसको सीएसटीआर भी बोलते हैं। मे बी यूज्ड टू डिग्रेड द पोल्यूटेंट विद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन। Both the reactors are fed with the same inlet concentration and the same volumetric flow rate. दोनों का concentration भी same है, volumetric flow rate भी same है। Are designed to achieve the same outlet concentration. दोनों की concentration same हमें outlet पे achieve होनी चाहिए, मतलब कि pollutant degrade कर जाए और उसके बाद बाहर जब वो मुझे मिले तो concentration same amount से reduce होनी चाहिए। अब इसमें क्या कहता है, ध्यान से देखो आगे क्या कहता है। Which of the following statement is true when comparing PFR, जब आप plug flow reactor को compare करते हो कंटिन्यूअस फ्लो स्टर टैंक रिएक्टर से। ठीक है, ठीक है, तो कहता है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस पे 4 स्टेटमेंट वहां पे आपके दिए हुए हैं। एक में दिया हुआ है कि पीएफआर विल ऑलवेज बी require less volume than CFSTR, then PFR will require the same reactor volume as CFSTR. CFSTR will always require less reactor volume than PFR, and CFSTR can sometime require less reactor volume than PFR. अब देखो गाइस, जब उसमें कंटिन्यूअस फ्लो स्टर टैंक रिएक्टर है तो भैया वहां पे तो हमेशा वॉल्यूम जो है ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, तो प्लग फ्लो रिएक्टर के केस में कम रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वहां पे तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है ना, फ्लो भी है और स्टरिंग भी होनी है वहां पे, तो वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा वहां पे। तो इन दैट केस जो आपका पीएफआर होगा, दैट विल ऑलवेज रिक्वायर लेसर वॉल्यूम। तो जो प्लग फ्लो रिएक्टर है विल ऑलवेज रिक्वायर लेसर रिएक्टर वॉल्यूम देन सीएफएसटीआर, क्योंकि सीएफएसटीआर में क्या है, जो कंटिन्यूअस फ्लो स्टर टैंक रिएक्टर है उसके अंदर एक्टिविटी का क्वांटा जो है बढ़ गया, तो थोड़ा सा वॉल्यूम उसमें ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का प्रोसेस होगा। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट पीएफआर जो आपका प्लग फ्लो रिएक्टर है, दैट विल ऑलवेज रिक्वायर लेस रिएक्टर वॉल्यूम देन सीएफएसटीआर। क्लियर है सबको? ये जल्दी बताइए फटाफट से क्विकली। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है क्या कि इसमें गाइस?
क्लियर क्लियर। चलिए अगर क्लियर है तो फिर वी विल स्टॉप हियर। tomorrow we will try to wind up this series, right? Or might be another class. तो next 2 days में हम target रखते हैं कि we will discuss the remaining 25 questions जो है आपके 55 क्वेश्चन थे टोटल सब्जेक्ट में, 30 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 25 क्वेश्चन जो है वो कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा जितने मैक्सिमम हो जाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं और इतने डिफिकल्ट भी नहीं है क्वेश्चन जो आप सोचो कि बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को थोड़ा देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको दिखता है, वी आर देयर कनेक्टेड ऑन ग्रुप्स, you can ask us directly. Thank you very much. Thanks for your patience. Thanks for being here. Right. Take care. Keep studying hard. It's not that much tough to score a 60 plus. Thank you guys.